ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਟਰੂ ਵੇਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਨਡੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਨਡੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਸਭ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ यूपीएससी ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਐਂਡ ਜੋ ਨੇਪਾਲ ਐਂਡ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜੋ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 16.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਅਨਮੈਰਿਡ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਹੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਸਟ ਮੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹਾਈਟ, ਵੇਟ, ਚੈਸਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਸਾਈਟ। ਐਨਡੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਆ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚੈਸਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਵੇਟ ਕੀ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਫਰੀ ਆਫ ਐਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਇਸਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਰਮੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਮੀ ਵਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10+2 ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਇਕੁਆਲੈਂਟ ਜੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, +2 ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਨੇਵੀ ਵਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਜੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐਨਡੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, यूपीएससी ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੰਥ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਐਸਬੀ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗੈਟ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਥ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 300 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਗੈਟ 600 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਤੇ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ 150 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0.83 ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ 1.33 ਗੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ 5 ਆਵਰਸ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, 2.5 ਆਵਰ ਫॉर ਈਚ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2.5 ਆਵਰ ਮੈਥਸ ਲਈ ਐਂਡ 2.5 ਆਵਰ ਗੈਟ ਲਈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੇਪਰ 1 ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਤਾਂ 300 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 120 ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, 2.5 ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 0.83 ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ 2.5 ਆਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ 600 ਨੇ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ 150। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਅਤੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਫॉर ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਫॉर ਜੀਕੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 200 ਐਂਡ 400 ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜੀ।
मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 4 मार्क्स इन बोथ द सैक्शन, करैक्ट करते हो 4 नंबर दिते जाएंगे एंड अगर तुम गलत करते हो तो 1 पॉइंट और जो 33 मार्क्स थोड़े कट्टे जाएंगे। ड्यूरेशन है जो 2.5 आवर की है। ठीक है जी, हम आप सिलेक्शन प्रोसीजर की गल करते हैं तो जो रिटन एग्जाम है एनडी का पहला वो होंगे, फिर उस तो बाद जो SSB जो इंटरव्यू जो कंडक्ट करती है। 5 डे का प्रोसैस होंगे, 900 नंबर का जोड़ा है टोटल जो होंगे। ये इंटैलीजेंस एंड साइकोलॉजी टैसट तो जो लाए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन एंड फिजिकल टास्क तो करवाए जाते हैं। ठीक है जी, फिर तो जो मैडिकल एग्जामिनेशन होंगे एंड फिर तो जो फाइनल मैरिट लिस्ट बनती है बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम एंड जो तुसी SSB के अंदर जो तुसी स्कोर करोगे। फाइनल मैरिट लिस्ट बनती है, फिर तो नाम जो आंदा है। उस तो बाद जो तो ट्रेनिंग एंड करियर पाथ के अंदर तुम देखोगे तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने वो जाते हैं 3 साल की ट्रेनिंग एट NDA खड़कवासला पुणे के विच। ठीक है जी, ये 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने तो बाद वो स्पैशलाइज्ड अकैडमी से जाते हैं। जिवें अगर तुम आर्मी की कर रहे हो तो आर्मी लई इंडियन मिलिटरी अकैडमी IMA देहरादून, अगर तुम नेवी जाना चाहते हो तो इंडियन नेवल अकैडमी INA, अगर तुम एयरफोर्स जाना चाहते हो तो एयरफोर्स अकैडमी AFA। ठीक है जी, आफ्टर ट्रेनिंग दे गैट कमीशनड एज तो तुम जो आर्मी के अंदर जो लैफ्टिनेंट्स या फिर सब लिeutenants या फिर नेवी के अंदर या फिर फ्लाइंग ऑफिसर जो इन्होंने जो रैंक जो हासिल करते हो। हम जो आप सिलेबस के उपर जो विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। ठीक है जी, तो सब तो पहले आप गल करांगे मैथेमैटिक्स की। तो अगर सब तो पहले अगर आप मैथेमैटिक्स की अगर आप गल करिए तो पहला टॉपिक है जी अलजैबरा। ठीक है जी, अलजैबरा के अंदर सब तो पहले तो तुहानू कंसैप्ट ऑफ सैट, ऑपरेशंस ऑफ सैट, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तुहाडी पूरी की पूरी जो सैट थियरी है। तो जो चैप्टर तुहाडे कोल सैट थियरी कंप्लीट ही है। ठीक है जी, फिर जो रिलेशन चैप्टर तुहाडा एंड जो इक्वेशन है ये आ गया तुहाडे कोल। फिर रियल नंबर, कॉम्पलैक्स नंबर, मॉडुलस, क्यूब रूट्स के उपर जो अलजैबरा के क्वेश्चन आते हैं। फिर कन्वर्जन ऑफ अ नंबर इन बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल, तो बाइनरी तो डेसिमल की भी जो अपने कन्वर्जन शामिल है एंड वाइस वर्सा, मतलब डेसिमल तो बाइनरी की भी करवाई जाती है। फिर अगर तुम देखोगे तो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, यानी कि अपना AP, GP ते HP, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, PNC, बाइनोमियल थ्योरम एंड जो लॉग दी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो आंदियां ने। ठीक है जी, ये अपना अलजैबरा है। हम आप गल करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस के अंदर कंसैप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन किहड़े हुंदे ने, डोमेन रेंज कैलकुलेट किवें की जाती है, तो किसी फंक्शन का ग्राफ आप किवें ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, कॉम्पोजिट फंक्शनस की होंगे ने, 1 फंक्शन, ऑन टू एंड इनवर्स फंक्शनस। तो आ कंप्लीट जो चैप्टर अपना फंक्शनस का ही है, आ कंप्लीट चैप्टर। ठीक है जी, कंप्लीट जो चैप्टर थोड़ा फंक्शनस का है, फंक्शनस फुल चैप्टर आता है जिहदे विच। ठीक है जी, फंक्शनस तो बाद तुसीं लिमिट्स की गल करते हो, नोशन ऑफ लिमिट्स की है, स्टैंडर्ड लिमिट्स की गल करते हो जिहदे विच ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स या एक्सपोनेंशियल लिमिट्स जो स्टैंडर्ड अपन मिलदियां ने। फिर फंक्शनस की कॉन्टिन्यूटी के ऊपर आप चर्चा करते हैं। ठीक है, अलजैब्रिक ऑपरेशंस ने कॉन्टिन्यूस फंक्शंस दे एंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है जी, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव एप्लीकेशंस, डेरिवेटिव ऑफ अ सम प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल जो डेरिवेटिव्स ने जो मतलब बेसिकली अगर आप देखे जाए तो अपने को कैलकुलस के फंक्शन चैप्टर। ठीक है जी, फिर लिमिट्स के नाल कॉन्टिन्यूटी, ठीक है जी, कॉन्टिन्यूटी, उस तो बाद डेरिवेटिव्स जो आ रहे हैं। ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कंसिडरिंग अनदर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के रिस्पैक्ट दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना, कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो आ गया अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जिन्हें ए और डी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन, ठीक है जी, जो अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है जी। ठीक है जी, ये बेसिकली अपना डिफरेंशियल कैलकुलस है कंप्लीट, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है जी। फिर तुम देखोगे तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स भी जो ने सिलेबस का पार्ट ने, ठीक है जी। टाइप्स की होंगे ने, ऑपरेशंस की ने मैट्रिसेस दे, डिटरमिनेंट किवें निकलदा किसी मैट्रिक्स का, बेसिक प्रॉपर्टीज की ने डिटरमिनेंट्स दे, ठीक है जी। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट इनवर्स उनके उपर क्वेश्चन ने जी। एप्लीकेशन है जो लीनियर इक्वेशन आप किवें फाइंड करते हैं एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है जी। 3 अननोन्स दी क्रैमर्स रूल मैट्रिक्स मैथड, ठीक है जी। एंड फिर अपना आंदा इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है जी। इहदे विच अपने कोल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है जी, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है जी। फिर अपने कोल जो आ जाता AOI यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। इस तो तुसी जो स्क्रीनशॉट लै सकते हो, ठीक है जी। तुसी स्क्रीनशॉट जो तुसी लै सकते हो इस सिलेबस का। फिर आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो सिलेबस का पार्ट है, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट एंड डिग्रीज रेडियन, ठीक है। सब तो पहला तो जो आप रेडियन की डिग्री की गल करते हैं कन्वर्जन वाले क्वेश्चन ने जी। रेशोज ट्रिग्नोमेट्रिक, सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, मतलब ये अपने को बेसिकली कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है जी, विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पार्ट है सिलेबस का। एंड जो एप्लीकेशन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री है या कि हाइट एंड डिस्टेंस वो भी है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी जो आ अपना पार्ट सिलेबस का। फिर अगर तुम देखोगे तो वैक्टर जो आ वो भी है सिलेबस के विच, तो वैक्टर्स इन 2 and 3 डायमेंशनस, ठीक है। यानी कि 2D के अंदर वैक्टर्स के सवाल तो 3D के अंदर भी वैक्टर के सवाल जो पूछे जाते हैं। किसी वैक्टर का मैगनीट्यूड कितना कैलकुलेट करते हैं, डायरैक्शन किवें आप देखते हैं वैक्टर की, यूनिट तो नल वैक्टर्स की होंगे ने, एडिशन ऑफ वैक्टर्स किवें करते हैं, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर प्रोडक्ट जिन्होंने कहते हैं आप, डॉट प्रोडक्ट जो अपना होंगे ऑफ टू वैक्टर्स किवें कैलकुलेट करते हैं, वैक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की आप जो गल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर तुम देखोगे तो सिर्फ 2 वैक्टर्स की इतने गल की गई है। जो क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट है वो सिर्फ 2 वैक्टर्स के इतने लिखा हुआ है, बट कई बार क्वेश्चन 3 वैक्टर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एप्लीकेशन की भी गल की गई है, वर्क डन के क्वेश्चन, फोर्स मूवमेंट, ठीक है जी। एंड जो ज्योमेट्रिकल जो प्रॉब्लम्स ने। फिर जो एनालिटिकल ज्योमेट्री 2 and 3 डायमेंशन, ठीक है जी। तो ये अपनी 2D एंड 3D के क्वेश्चन ने जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D के अंदर भी 3D के अंदर भी, डिस्टेंस फार्मूला 2D के अंदर भी 3D के अंदर भी, इक्वेशन ऑफ लाइन के क्वेश्चन आ जाते हैं, एंगल कितना कैलकुलेट करते हैं, 2 लाइन्स के विचकार दा एंगल, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, एक लाइन तो किसी पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ वो कितना कैलकुलेट करते हैं आप, उनके रिलेटेड क्वेश्चन ने जो, ठीक है जी। फिर इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है, तो सर्कल भी जो सिलेबस के है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, एलिप्स ते हाइपरबोला। तो कॉनिक सैक्शन जो वो भी सिलेबस का ही पार्ट है, तो जो कॉनिक सैक्शन, ठीक है जी, उनके उपर भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज, इक्वेशन 2 पॉइंट्स, ठीक है जी। आ सारा तुहाडे सामने लिखा हुआ है, प्लेन्स की इक्वेशन, 2 प्लेन्स के विचकार दा एंगल, ठीक है जी। फिर जो आप गल करते हैं स्टैटिस्टिक्स से प्रोबेबिलिटी की, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है जी ये, जिनसे आप रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम्स की होंगे, सैंपल स्पेस, ईवेंट्स की आप जो गल करते हैं, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स अपने जो एलिमेंट्री एंड कॉम्पोजिशन इवेंट्स ने, जो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल एंड स्टैटिकल एग्जाम्पल्स ने, ठीक है जी। फिर कुछ थ्योरम्स ने अपने प्रोबेबिलिटी दियाँ, ठीक है जी। थ्योरम्स ने जिन्हें बेस थ्योरम अपने को जो होगी, ठीक है जी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई अपनी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आ गई ने, ठीक है जी, रैंडम वेरिएबल के अंदर।
तो तुसी जो इसका स्क्रीनशॉट जो तुसी ले सकते हो कंप्लीट सिलेबस का, ठीक है जी। फिर आप गल करांगे जो तुहाडा इंग्लिश जो सबजैक्ट है उन्हें की तुहाडा सिलेबस रहेगा। तो इंग्लिश द क्वेश्चंस पेपर इन द इंग्लिश विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। इट कवर्स वेरियस, ठीक है। सब तो पहले ग्रामर एंड यूजेज है जो ग्रामर दे, ठीक है जी, वोकैबलरी, कंप्रीहेंशन, सिलेक्टिंग वर्ड्स एटसैक्ट्रा, ठीक है जी। ये जो इंग्लिश है जो तुहाडा सिलेबस है जी। फिर तुहाडा जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है जीके के अंदर जो तुहाडा जीके के तुहाडे टॉपिक ने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो जनरल साइंस आ गई, जो तो सोशल स्टडीज़, जियोग्राफी, ठीक है जी, एंड तुहाडे जो करंट अफेयर्स ने, ठीक है जी। ये तुहाडे जो करंट अफेयर्स भी तुहाडे जो पार्ट जीएस आ जो तुहाडा वो भी एनडीए के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है जी। फिजिक्स केमिस्ट्री के नाम तुसीं जीएस के उपर भी जो तुहाडा तुसीं पूरा ध्यान देना है, ठीक है जी। हुण फिजिक्स का सिलेबस अगर तुसीं देखोगे तो स्क्रीन के उपर तुसीं फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस देख सकते हो जी, ठीक है जी। प्रैशर, बैरोमीटर, ह्यूमन आई, मोशन ऑफ ऑब्जैक्ट्स, तुसी जो सिलेबस का तुसी जो स्क्रीनशॉट ले लिया जे, ठीक है जी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अगे चलोगे, ठीक है। आज जो कंप्लीट सिलेबस है ओम्स लॉ, ग्रेविटेशनल, सिंपल इलैक्ट्रिकल, यानी कि जो 11th एंड 12th जो फिजिक्स है कंप्लीट ही है इसके अंदर। तो तुसी जो स्क्रीनशॉट जो जरूर इसके ले लिया जे, ठीक है। पावर एंड एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ इलैक्ट्रिकल पावर, इफेक्ट ऑफ हीट एंड सो ऑन। हुण अगर तुसी केमिस्ट्री की गल करो तो केमिस्ट्री का सिलेबस भी तुहाडे सामने है। प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है जी। एसिड बेस ने जो तुहाडे, ठीक है जी, कार्बन इन डिफरेंट फॉर्म्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है जी। आ तुहानू सारे जो गिवन है, तुसी जो इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट जो तुसी ले लो, ठीक है जी। सिलेबस फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। आ तुहाडा नेक्स्ट चैप्टर आ गया जी, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, एलिमेंटरी आइडियाज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तुसी अगर कॉपी पेन लैके अगर तुसी बैठे हो तो सिलेबस कंप्लीट अपनी कॉपी से उपर नोट डाउन कर लियो, तुसी स्क्रीनशॉट भी जो लै सकते हो, ठीक है जी। बैलेंसियों के उपर क्वेश्चन जो आते रहते हैं, ठीक है जी। एनडी सिलेबस फॉर जनरल साइंस, जीएस का सिलेबस है जो तुहाडे स्क्रीन के सामने, तुसी इहदा भी जो स्क्रीनशॉट जो ले लो, ठीक है जी। फिर एनडी सिलेबस फॉर जियोग्राफी, कंप्लीट जो जियोग्राफी हैगी जी अपनी अर्थ, शेप, साइज, ओशन, करंट टाइड्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स की होंगे ने, कंसैप्ट ऑफ टाइम, क्लाइमेट, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये थोड़ा जो जीएस का जो सिलेबस जियोग्राफी का जो थोड़ा सिलेबस है, ठीक है जी। नैक्सट चैप्टर आ गए जियोग्राफी के, जो तुसी इनकी भी जो तुसी स्क्रीनशॉट जो तुसी ओह ले लो, ठीक है जी। जो भी बच्चे कापी पेन लैके बैठे ने वो कापी पेन के उपर नोट जो कर लें सिलेबस में, ठीक है जी, ठीक है जी। इस स्क्रीनशॉट ने जो तुसी ले लिया जी। थोड़ा करंट अफेयर्स भी जो थोड़ा पार्ट है सिलेबस का, करंट अफेयर्स के उपर भी तुसी पूरा ध्यान देना है, ठीक है जी। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स ने नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया इन रीसेंट जो ईयर्स ने, जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज़, करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट, ठीक है जी। फिर एनडी सिलेबस फॉर हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, जो हिस्ट्री का जो टॉपिक्स ने तुसी उसका भी जो तुसी स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, अदरवाइज कॉपीज़ के उपर तुसी नोट डाउन कर लिया जी, ठीक है जी। अब तुसी जो सिलेबस का जो तुसी स्क्रीनशॉट ले लो हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट्स का, ठीक है जी। बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है जी। नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट, इसका जो तुसी स्क्रीनशॉट या तुसी कॉपी के उपर नोट डाउन जरूर करियो, ठीक है जी। वधेरे जानकारी लिए तुसी संपर्क कर सकते हो जी इस नंबर के उपर, ठीक है जी। इदां दी होर वीडियोज़ देखने सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल नूं। धन्नवाद।